नेशनल स्पोर्ट्स फैक्ट्री बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, नेशनल स्पोर्ट्स फैक्ट्री बंद करो, बंद करो, स्पोर्ट्स फैक्ट्री बंद करो, बंद करो, नेशनल स्पोर्ट्स फैक्ट्री बंद करो, बंद करो, नेशनल स्पोर्ट्स फैक्ट्री बंद करो, बंद करो, नेशनल स्पोर्ट्स फैक्ट्री बंद करो, बंद करो, कठुआ से पोल्यूशन खत्म करो, खत्म करो, कठुआ से पोल्यूशन खत्म करो, खत्म करो, नेशनल स्पोर्ट्स फैक्ट्री बंद करो, बंद करो, नेशनल स्पोर्ट्स फैक्ट्री बंद करो, बंद करो, नेशनल स्पोर्ट्स फैक्ट्री बंद करो, बंद करो। क्या परेशानी आ गई ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਅੱਖੀ ਧੂਆਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਗਲੇ ਹੀ ਕਈਆਂ ਘੜੁੰਦੇ ਗਾਲੇ ਦੇ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਗੋਈਆਂ ਮੌਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੰਗ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਰਾ ਗਿਆ ਮਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿੰਨਾ ਧੂਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਧੂੜ ਕਿੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਧੂਆਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਫ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਥੋੜਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਘਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਵਿੰਦ ਸਲਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗਲਾ ਪਕੜਵਾ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮਰਚਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਚਲ ਪੈਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਚਲਾਓ ਅੱਖਾਂ ਪਾਣੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਕਿੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਰਹੋ ਨਾ ਦੇਵਰਾਜ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸੇ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੋ 15-18 ਦਿਨ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮੀ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਜੀਣਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਗਲਾ ਦੁਖਦਾ ਆ ਨਾ ਬੂਟੇ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੂਟਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰ ਕਿੜੀਏ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਲਿਆ ਜਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਢਾਪਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ और क्या मामला है देखिए जी ये हटली मोड़ का एरिया है यहाँ पे एक नेशनल स्पोर्ट्स फैक्ट्री जो लगी थी पहले उस फैक्ट्री को कन्वर्ट करके इन्होंने कोई जिंक की फैक्ट्री यहाँ पे तैयार की हुई है लोगों को इस चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं है क्योंकि ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं ये पिछले तकरीबन 10-15 दिन से मेरे पास मेरे ऑफिस में गए थे क्योंकि मैं एनजीओ से वाबस्ता हूँ हम यहाँ पे कटुआ 2007 से एनजीओ चला रहे हैं एंटी पोल्यूशन मूवमेंट अनअप्लाइड ऑर्गेनाइजेशन ये हमारे ऑफिस में गए इन्होंने मुझे वहाँ पे जाके बताया तो इस फैक्ट्री से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है इवन के हमारे घर की जो सब्जियाँ हैं वो भी इसके साथ ख़त्म हो गई हैं हमारा सांस लेना मुश्किल है हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो है गले में प्रॉब्लम हो रही है और आज हमने यहाँ पे आके स्पॉट पे विजिट किया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस फैक्ट्री के अंदर जाना हमारे लिए दुश्वार था किस तरह इन यहाँ पे जो मुलाजिम हैं वो काम कर रहे हैं यहाँ के जो इनके फैक्ट्री के मालिक हैं वो कोटा में बैठे हैं यहाँ से माल इकट्ठा हो रहा है उस माल से लोगों की जान जा रही है ये इनको पता नहीं है सर आपने कहा स्पोर्ट्स फैक्ट्री है तो यहाँ क्या देखा क्या बनता है मैं इसीलिए हैरान हूँ भाई बाहर जो उनका बोर्ड है नेशनल स्पोर्ट्स का लगा हुआ है वो अंदर इनमें जहर तैयार और जिंक तैयार हो रही है और जिंक उस तरीके से तैयार हो रही है कि सारी फैक्ट्री ओपन है मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अपना कैमरा घुमाए ये पूरी फैक्ट्री ओपन है जिंक फैक्ट्री का एक प्रोटोकॉल है एक सिस्टम है उसमें पीसीबी जो डिवाइस हैं वो लगते हैं उसके बाद इस फैक्ट्री को एनओसी लेने के लिए हर जो डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर होते हैं चाहे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ऑफिस हैं उनसे एनओसी लेनी पड़ती है और हमारे बहुत मुझे हंसी भी आती है हमारे यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है पीसीबी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वो कहते हैं हमारे पास पावर ही नहीं है ये सीधा जम्मू से ले आते हैं एनओसी हमारे पास नहीं आते हैं ये पता नहीं कितना बड़ा लिंक है इनका इतना बड़ा खतरा देखते हैं सर इलाके मैं कहता हूँ आने वाले वैसे भी हम लोग जो हैं पोल्यूशन की समस्या से जूझ रहे हैं पर ऐसी इंडस्ट्री अगर हमारे जहाँ रहेंगी तो हमारा बचना जहाँ पे मुश्किल क्या नामुमकिन है मैं आपको बताना चाहता हूँ पिछले दिनों भी जहाँ पे फैक्ट्री के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था और उसमें हमारे 2 मजदूरों की कीमती जानें चलेंगी अगर आज फैक्ट्री है तो उसके पीछे मजदूर है अगर मजदूर नहीं है तो फैक्ट्री नहीं है पर मालिकों को क्या है
उन्होंने आज भी उस फैक्ट्री की वही दुर्दशा की हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे ना तो कोई इन्होंने चादरें लगाई हुई हैं, ना कोई पीसीबी डिवाइस लगाया हुआ है, ना ही फैक्ट्री के प्रकाशन के लिए जो जहाँ पे मुलाजिम काम करते हैं उनके लिए कोई जहाँ पे व्यवस्था की हुई है। कल कोई फैक्ट्री में फायर हो जाती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक भी फायर इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा हुआ है। कल फैक्ट्री में फायर होती है, देख सकते हैं आप। दूसरा नंबर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडस्ट्री वालों को ये बात कहना चाहता हूँ, भाई इंडस्ट्री लगाएं आप। हमें इंडस्ट्री से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है पोल्यूशन से। हमें पोल्यूशन से निजात चाहिए। हमारी डिप्टी कमिश्नर कठुआ से ये रिक्वेस्ट रहेगी, सर आप बैठे ऑफिस में हो और आपका ये दायित्व बनता है कहीं ना कहीं आके जो आपके कठुआ में ऑफिस खुले हुए हैं, जो कहीं ना कहीं पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं या किसी तरह पब्लिक से रिलेटेड हैं, उनको चेक करना भी आपका दायित्व बनता है। मैं एक बार फिर पीसीबी कठुआ को ये चेतावनी देता हूँ और साथ ही साथ जो हम इनके जो ऑफिसर जम्मू में बैठे हुए हैं, चाहे इनके आरडी साहब हैं, चाहे इनके कमिश्नर साहब हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे और हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी खास करके डिप्टी कमांडर साहब से, सर इन चीज़ों की तरफ भी आप ध्यान दीजिए। क्योंकि वैसे भी हमारे जहाँ पे जो फैक्ट्री, एक तो टायर फैक्ट्री जहाँ पे लगी हुई है उसने लोगों को जीना दुश्वार किया हुआ है। रात को 10 बजे के बाद वो अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, जो 10 बजे के बाद रोड पे आता है उससे आप पूछ सकते हो भाई टायर फैक्ट्री चलने से लोगों को कितना बड़ा नुकसान है। मैं एक बार फिर मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ को, पीसीबी डिपार्टमेंट को और खास करके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो इन फैक्ट्रियों का नाम बदलकर लोगों के साथ धोखा करते हैं, उनको मैं ये चेतावनी देता हूँ इस चीज़ की तरफ ध्यान दिया जाए। नहीं तो यही लोग जो एनएच पे होंगे और उसका कसूरवार ये डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनती है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से लोग परेशान हों। जय हिंद, जय भारत।